फॉर्म कूलोम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म वो कंप्लीट होगा है क्या? यस सर। ठीक है, उसका एक्सप्रेशन क्या बताया था बेटा, जरा बताओ तो। वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन क्या बताया था उसका? डायग्राम निकाल के बताया था पूरा? यस सर. ठीक है, सर ते पोजीशन ओके सर सर सांग F12 is equals to 1 by 4 pi epsilon 0 into Q1 into Q2 upon R21 mod of R21 square, and F21 is equals to 1 by 4 pi epsilon 0 into Q1 into Q2 upon R square into R12 cap. ओके ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है. So I'll revise the points once again. Coulomb's law, statement of Coulomb's law. The force of attraction or repulsion between the 2 point charges is directly proportional to product of magnitude of the charges and inversely proportional to square of the distance between them. Excuse me, sir. Yes, beta. Sir, your voice is too low. Voice is not clear. Yes. You are not getting voice. Sir, your voice is coming, but it's too low. Yes, low voice, इंटेन्सिटी कम है उसका. ठीक है, तो ऋषि सरला बोल बारे, मैं इधर थामा माना. अभी भी ऐसा ही आ रहा है, लो वॉइस आ रहा है? नो सर, अरे सर क्लियर है रे. क्लियर आ रहा है? नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है बेटा, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है. सर बघा ते आवाज कमी येत आहे म्हणते. According to the statement of Coulomb's law, अभी वैसा ही आ रहा है आवाज. According to statement of Coulomb's law, the force of attraction, अभी आ रहा है ना? अभी ठीक से आ रहा है? Okay. Yes, sir. The force of attraction or repulsion between the 2 point charges is directly proportional to product of magnitude of the charges, inversely proportional to square of the distance between them. So in mathematical form, we write that F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 divided by R square, where epsilon 0 is permittivity of free space if the charges are kept in free space or vacuum. If we change the medium, permittivity will get changed, okay, or dielectric constant will change. How we write the same formula in another medium except air or vacuum? The same force is written as 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 divided by R square. This is in magnitude form or scalar form, okay. Coulomb's law वो हमने वेक्टर फॉर्म में भी लिखा है. उस पर शायद 2 क्वेश्चन भी कवर किए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कूलोम्स लॉ. दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस अप्लाइड टू कैलकुलेट द कूलोम्स फोर्स, रिजल्टेंट कूलोम्स फोर्स. Principle of superposition, of forces to calculate the resultant Coulomb's force. रिजल्टेंट कूलोम्स फोर्स. अब देखो, आप सबको ये मालूम है कि फोर्स जो फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी फोर्स. दिस इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. इट पजेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. यस, इसको दोनों होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है.
इमेजिन करो कि एक पर्टिकुलर स्पेस है, उसमें अगर हमने दो अलग अलग चार्जेस रखे तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट चार्ज विल एक्सर्ट फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज एज वेल एज सेकेंड चार्ज विल एक्सर्ट फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज। ठीक है, वहां हम कूलोम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। इमेजिन करो हमने तीसरा एक चार्ज बढ़ा दिया और एक चार्ज बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट चार्ज विल एक्सर्ट फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज विल एक्सर्ट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज also exert force on first charge. They will exert force. Yes बेटा, क्या हो रहा है? They will exert force on each other. सबको समझ में आ रहा है? एक चार्ज दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, दूसरा चार्ज पहले पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, तीसरा चार्ज पहले पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, और एक चार्ज हमने बढ़ा दिया, चार्ज Q4 भी रखा है। अब क्या हो जाएगा? All charges will exert force on each other. Q1 will exert force on Q2, Q2 on Q3, Q3 on Q4, Q4 on Q1, like this. और एक चार्ज बढ़ा दिया, इसे बहुत सारे चार्जेस लिए हमने। We consider number of charges, more than 3 charges in a given space of the medium, either in vacuum or in air or in glass or in mica. आपको समझ में आ रहा है? बहुत सारे चार्जेस एक ही स्पेस में हमने लिए, तो क्या हो जाएगा? All charges will exert force on each other. Now, if we have to apply Coulomb's law for a single charge, we are going to calculate the resultant force, total force acting on a given charge, total force acting on a specific charge, particular charge, given charge. Then what we have to do? We have to apply a basic principle of vectors, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेक्टर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ये प्रिंसिपल हमें अप्लाई करना होगा। आपने वेक्टर में ये स्टडी किया है, अगर एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग वेक्टर एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं, तो हम उसका रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते? कौन बताएगा मुझे? इफ देयर इज फर्स्ट वेक्टर से p बार, second vector q bar, first vector is acting at point A, second vector is also acting at point A. How we calculate the result? सेकंड वेक्टर टेल फर्स्ट वेक्टर से स्टार्टिंग पॉइंट ला टच करे। Okay, we can apply triangle law. ठीक है, you're talking about triangle law. You can apply triangle law or we can apply parallelogram law. हम क्या अप्लाई करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ। सबको पता है ना रिजल्टेंट क्या होता है? पहला वेक्टर है p बार, दूसरा वेक्टर है q बार, एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, देयर इज एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स, then what is resultant of the two vector? It is equal to its magnitude, under root of p square plus q square plus twice of pq cos of theta. Theta is angle between the two vector, so you can find resultant. लेकिन यहाँ दो फोर्सेस नहीं, बहुत ज्यादा फोर्सेस है, तुम उसको ऐड कैसे करेंगे? We find resultant of all forces using superposition principle, and according to superposition of forces, the resultant force acting on a given charge, it is vector sum of all the forces, ठीक है? हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। कंसिडर दैट इन वैक्यूम नंबर ऑफ चार्जेस आर केप्ट। फर्स्ट चार्ज इज q1, there is second charge q2, charge q3, q4, q5 up to qn, बहुत सारे चार्जेस है। ठीक है, दिस इज चार्ज q1, दिस इज चार्ज q2। अब ये एक ही स्पेस में है, so what will happen? There is interaction between q1 and q2. There is interaction between q1 and interaction माने पहला चार्ज दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, दूसरा चार्ज पहले पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। सबको समझ में आ रहा है ना? जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है, ग्रेविटेशन में होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। यहाँ कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ लेट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी we consider all the charges positive charges। ये पहला चार्ज है प्लस q1, ये चार्ज है प्लस q2। अब क्या हो जाएगा? चार्ज q2 will exert force on q1, so q1 will experience Coulomb's force due to charge q2। now let F12 bar
it is force experienced by charge q1 due to charge q2. Similarly, q3 will exert force on charge q1, say F13 bar. This is force experienced by q1. ये हम कैसे दिखा रहे हैं? F13 बार. 13 का मतलब क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q3. F12 बार, इसका मतलब क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2. या Q2 ने Q1 वर एक्झर्ट केलेला फोर्स F12, Q3 ने Q1 वर एक्झर्ट केलेला फोर्स F13 बार. Similarly, remaining charges also exert force on that first charge. We represent all other forces. Say F14 bar. Yes, correct. 14 bar. This is force experienced by charge Q1 due to charge Q4. Similarly, F15 bar. F15 bar. This is force experienced by charge Q1 due to charge Q5. यहाँ एक लास्ट चार्ज है, से nth चार्ज. n may be 100, 200, 500. Any finite number of charges. This is nth charge. Now nth charge will also exert force on this charge, charge Q1. Say F1n bar. This is force experienced by charge number Q1 due to nth charge. Say R12, distance between charge Q1 and Q2. Similarly, R13, distance between charge Q1, Q3. Similarly, R14, R15, R1n, the distance between charge Q1, Q5 up to Q1 and Qn. देखो हमें ये जो चार्ज है ना, चार्ज Q1, इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ये रिजल्टेंट फोर्स हमें कैलकुलेट करना है. इसके लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं. Now, according to superposition principle, the resultant force acting on a given charge, it is a vector sum. It is a vector sum of all the forces exerted by the remaining charges on a given charge. ये पहला फोर्स है F12, इसको हम F13 में ऐड करेंगे, 13 को फिर 14 में ऐड करेंगे. ये अगर फोर्सेस हमें ऐड करना है तो हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते. आपने स्केलर वेक्टर में पढ़ा है ना, मैथमेटिकल मेथड्स में पढ़ा है ना, स्केलर कैन बी डायरेक्टली एडेड. मेरे पास अगर पहला मास है 5 किलोग्राम का, दूसरा मास है 3 किलोग्राम का, तो टोटल मास कैसे लिख सकता हूं मैं? 5 + 3 लिख सकता हूं ना. 5 + 3 = 8 किलोग्राम. वी कैन ऐड वॉल्यूम ऑल्सो. मेरे पास 1 लीटर का मिल्क है, उसमें मैंने 2 लीटर का मिल्क ऐड कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 + 2 3 लीटर. मैं ऐड कर सकता हूँ डायरेक्टली, बट वी कैन नॉट ऐड फोर्सेस, वी कैन नॉट ऐड वेलोसिटी, वी कैन नॉट ऐड डिस्प्लेसमेंट, वी कैन नॉट ऐड वेलोसिटी. हम वेक्टर डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, बिकॉज दे पोजेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन का, और इस साइड से अप्लाई किया 4 न्यूटन का, दोनों एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, उसमें 180 डिग्री एंगल है. तो रिजल्टेंट फोर्स में 5 + 4 लिख सकता हूँ क्या? नहीं है. ये वेक्टर सबट्रैक्ट हो जाएंगे बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन. दैट विल बी 5 - 4. अगर दोनों सेम डायरेक्शन नहीं है तो ऐड हो जाएंगे 5 + 4 9 न्यूटन. इफ दे आर परपेंडिकुलर, ऐड भी नहीं होगा, सबट्रैक्ट भी नहीं होगा. वेक्टर से हम कैसे निकालेंगे? यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ. यस, वी कैन यूज ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ. सो वी हैव टू यूज वेक्टर अलजेब्रा. We have to use vector algebra. Regular algebra is not applicable. Arithmetically हम ऐड नहीं कर सकते उसको. वैसे देखो ये फोर्सेस है, we cannot directly add the forces. We have to use now vector algebra. For that we are using superposition principle. Now let us write all these forces in vector form. All these forces in vector form. ये जो वेक्टर है ना F12 बार, देखो ये जो वेक्टर मैंने लिखा F12 बार, इसको हम 2 पार्ट में लिखते हैं. पहला पार्ट क्या होता है? मैग्नीट्यूड. कौन बताएगा? F12 बार का मैग्नीट्यूड क्या है? व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ F12 बार? दिस इज मॉड ऑफ F12 बार और सिंपली F12. अगर मैं इन्हें बार में निकाल दिया, बार निकाल दिया,
तो रिमेनिंग पार्ट क्या बनेगा, F12। ये जो पार्ट है F12 में दिखा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स। एंड डायरेक्शन के लिए हम ऊपर बार लगाते हैं ना, ये डायरेक्शन के लिए बार होता है, mod F12 bar or F12. Now I write F12 bar in vector form, means we write that in two part. First part is magnitude and second part is direction. Magnitude के लिए हमारे पास Coulomb's law है, Coulomb's law in magnitude form, scalar form हमने स्टडी किया है, 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r square, तोच आपला जुना फॉर्म्युला 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r square. एंड डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर। आप सबको पता है ना कंसेप्ट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर माने क्या होता है, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट माने 1, यूनिट माने 1, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। एक्चुअली यूनिट वेक्टर, it is a special vector which gives direction only, therefore it is also called as directional vector. It is for the purpose to explain the direction of a given vector. ये अगर किसी वेक्टर का हमें डायरेक्शन लिखना है मैथमेटिकल फॉर्म में, तो डायरेक्शन देने के लिए हम जो वेक्टर यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल आई बार, जे बार, के बार, ये तो आपने पढ़े ना। आई बार क्या होता है रे, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अगर किसी वेक्टर को एक्स एक्सिस में हमें एक्सप्लेन करना है तो हम क्या यूज करेंगे, आई कैप और आई बार, आई कैप, जे कैप, के कैप। जे कैप इट इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के कैप अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है, ओके। तो ये जो F12 बार है ना, उसको हमें अगर एक्सप्लेन करना है, उसका डायरेक्शन एक्सप्लेन करना है, तो हमें यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। लेट R21 cap, R21 cap, it is unit vector in the direction of F12 bar. मैंने R21 cap ही क्यों लिखा है पर्पसली, R21 cap आप सबको दिखाई दे रहा है, ओके। R21 cap, 21 cap का मतलब क्या है, this vector is starting at charge Q2, it is starting at charge Q2 and ending at charge Q1, इस डायरेक्शन में from Q2 to Q1, okay, from Q2 to Q1, R21 cap, unit vector in the direction of F12। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, अगर मैंने मॉड लिखा है R21 cap का मैग्नीट्यूड लिखा है मॉड, इट इज इक्वल टू 1। ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, ठीक है। सिमिलरली वी कैन रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर in the direction of F13, let R31 cap, unit vector in the direction of F13 directed from Q3 to Q1. Similarly R41 cap, R51 cap, Rn1 cap, unit vector in the direction directed from Q4 to Q1, Q5 to Qn, Qn to Q1, like this, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। सो वी राइट फर्स्ट वेक्टर F12 बार, F12 बार, this is Coulomb's force. We write it in two parts, magnitude and direction. What is magnitude of F12 bar? 1/4 pi epsilon 0, 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. Two charges, first charge is Q1, second charge is Q2. What is distance between Q1 and Q2? We represent it by symbol R12. आप R12 लिख सकते हैं, R21 भी लिख सकते हैं, मीनिंग सेम है। That is distance joining charges Q1 and Q2, ओके। आप 21 R12 कैसे भी लिख सकते हैं क्योंकि वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ठीक है। R12 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बन गया, ये मैंने जो लिखा है ये स्केलर फॉर्म है, ये सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन के लिए ये यूनिट वेक्टर हम यूज करें, R21 कैप इनटू R21 कैप, दिस इज आवर कंप्लीट वेक्टर, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन, F12 बार। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट फोर्स। देन सेकेंड फोर्स F13 बार, इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कौन बताएगा मैग्नीट्यूड इसका,
बोलो 1 upon 1 4 pi 1 upon 4 pi 4 pi epsilon 0 q. we are assuming that the charges are kept in vacuum. For simplicity, we consider that the charges are kept in vacuum. So constant of proportionality is 1 upon 4 pi epsilon 0. Now charges q1 and q3, q1 q3 divided by r square. R, distance between charge q1 and q3, represented by R13 yes R13 square square r13 square for into direction. R31 cap. Yes, R very good. 1 R3 cap 1 cap. like this. We can write remaining forces also. R14 बार ये सब आप ऐसे लिख सकते हैं टोटल, ठीक है. मैं लास्ट लिखता हूँ डायरेक्टली. F1n बार फोर्स exerted by nth चार्ज. F1n बार इसका मतलब क्या है? फोर्स exerted by nth चार्ज on first charge. It is equal to magnitude 1 upon 4 pi epsilon 0. Yes, very good. Q1 Q1 into Qn Q divided by R1n square multiplied by RN1 Rn1. okay, very good. Rn1 cap. There is the forces exerted by number of charges on first charge. अब देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है. According to superposition principle, if the number of charges are interacting in a given space, interacting in a given space माने क्या? They are present in that given space and exerting force on each other, and exerting force on each other. That is, they are interacting in a given space. If the number of charges are interacting in a given space, then force experienced by a particular charge, force experienced by a particular charge, it is the vector sum, it is the vector sum exerted by the remaining charges on a given charge. ये टोटल फोर्स कितना होता है? रिजल्टेंट फोर्स क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय गिवन चार्ज. दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रिमेनिंग चार्जेस. ये बाकी जो चार्जेस है, ये जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे, इसका वेक्टर सम. वेक्टर सम माने वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन. वी हैव टू यूज वेक्टर अलजेब्रा. इट इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय रिमेनिंग चार्जेस ऑन ए गिवन चार्ज. ये आप सबको समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, in a given space there are 100 charges. कितने charges है? 100 charges. And we are going to find out force acting on first charge Q1. तो कितने forces हमें collect करने पड़ेंगे? कितने forces add करने पड़ेंगे? 99 Yes, 99 forces. जो पहला चार्ज है ना Q1, उस पे जो टोटल फोर्स है वो कैलकुलेट करना है. तो रिमेनिंग चार्जेस कितने हैं? 99 चार्जेस. 100 में से एक गया, बच्चे कितने? 90. अब ये 99 सारे मिलके ये फर्स्ट चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे. सेकेंड विल एक्सर्ट फोर्स ऑन फर्स्ट, थर्ड विल एक्सर्ट फोर्स ऑन फर्स्ट, 99 चार्ज विल एक्सर्ट फोर्स ऑन फर्स्ट. So there are 99 forces, and vector sum of all the 99 forces, it is the resultant force, it is the total force, and this is the concept of superposition of forces. So according to principle of superposition of forces, the resultant force acting on a given charge, resultant force on Q1. रिजल्टेंट क्या मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट वेक्टर. रिजल्टेंट फोर्स, इट इज अ सिंगल फोर्स, it is a single force which gives effect of all the number of forces. Resultant vector, it is a single vector which explains the combined effect of all the vector. ये सारे मिलके जो एक ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे ना, वो होता है रिजल्टेंट. दैट इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट और इफेक्टिव वेक्टर और टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, इफेक्टिव फोर्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं, मीनिंग सेम है. सो रिजल्टेंट फोर्स, इक्विवेलेंट फोर्स, टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1, F bar or F1 bar, force experienced by first charge F1 bar, it is equal to F12 bar plus
F13 bar, F13 bar plus F14 bar up to F1n bar. Yes, if we add all the vectors, all the forces, we get the resultant force. ठीक आहे, इथपर्यंत घ्या लिहून. त्यानंतर मी स्टेटमेंट लिहून देतो. या स्टेटमेंटनुसार आपण लिहिलंय रिझल्टंट फोर्स, रिझल्टंट वेक्टर. सर येस बेटा. हा प्रिन्सिपल फक्त म्हणजे जे नंबर ऑफ चार्जेस असतात एका चार्जवर जेवढे चार्ज हे फोर्स एक्झिट करतात त्यासाठी ना. बेटा एक दोन मिनटं मला ऐकू द्या व्यवस्थित. मला विचार परत, ते मला लक्षात नाही आलं, ऐकू नाही आलं मला. हां, काय काढायचं तुला? सर हा प्रिन्सिपल फक्त जेव्हा नंबर ऑफ चार्जेस दिले तुझा आवाज व्यवस्थित येत नाही. हां, हा प्रिन्सिपल फक्त जेव्हा नंबर ऑफ चार्जेस दिले असतात ना त्याच्यामध्ये एका चार्जवर बाकी जे चार्जेस फोर्स एक्झर्ट करतात बर, ते साथ फक्त. ते कसं काढायचं? त्याच्याकरता सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल आहे ना. हे बघ. पण सर बरं, बरं. जेव्हा पण ते चार्जवर ते एकमेकावर पण फोर्स एक्झिट करत असतात बरं, ना, बरं, बरं. असं ठीक थोडी आहे. गॅप पण ठीक आहे, तर ते आपल्याला ॲप्लिकेशन त्याचं न्यूमेरिकल्समध्ये करायचं आहे. जो आवाज आता मला व्यवस्थित येईना, मला असं वाटते तुला असं विचारायचं, हे सगळे जे चार्जेस आहेत हे पहिल्या चार्जवर फोर्स एक्झर्ट करतायत ना, याचा रिझल्टंट काढायचा ना. मग हा ह्या दुसऱ्या आणि पहिल्यावर एक्झर्ट केलेला फोर्स F12 आहे. फोर्स एक्झर्टेड बाय Q3 अँड Q1 इट इज F13. मग आपल्याला इथे काय करावं लागेल? F12 आणि F13 याचा रिझल्टंट काढावं लागेल युझिंग पॅरलोग्राम लॉ. हा रिझल्टंट, या रिझल्टंटमध्ये पुन्हा हा ॲड करायचा, अजून एक रिझल्टंट मिळेल, याच्यामध्ये अजून हा ॲड करायचा रिझल्टंट, आणि ते सुपरपोजिशन सांगतोय ना. इट इज द वेक्टर सम, इट इज द वेक्टर सम. मग आपल्याला हे सगळे फोर्सेस तिथे ॲड करावे लागतील. या सगळ्यांसाठी आपल्याला पॅरलोग्राम लॉ अप्लाय करावा लागेल. या दोन्ही वेक्टरमधला अँगल आपल्याला माहिती पाहिजे. या दोन्हीमधला अँगल सपोज 30 डिग्री असेल, पहिल्याचा मॅग्निट्यूड F1 असेल, दुसऱ्याचा F2 असेल, तर रिझल्टंटचा मॅग्निट्यूड किती असेल? अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वेअर प्लस F2 स्क्वेअर प्लस F3 स्क्वेअर प्लस F4 स्क्वेअर अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वेअर प्लस F2 स्क्वेअर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 कॉस ऑफ थीटा, पहिल्या दोन्हीचा. त्यानंतर हा रिझल्टंट सपोज आपल्याला मिळाला F आणि पुढे F4 बार आहे, ह्या दोन्हीचा रिझल्टंट काढायचा. मग तो काय ते मिळेल? अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वेअर प्लस F4 स्क्वेअर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F4 इंटू कॉस ऑफ थीटा. आपल्याला पहिल्याचा मॅग्निट्यूड दुसऱ्याचा मॅग्निट्यूड दोन्हीतला अँगल माहिती असेल तर पॅरलोग्राम लॉ यूज करता येईल. असे आपल्याला सगळे फोर्सेस जे आहेत ना हे सगळे ॲड करता येते. आता जसा पहिला जो चार्ज आहे बाकीच्यांकडून फोर्स एक्सपिरियन्स करतो, तसं आपल्याला कुठल्याही चार्जवरचा फोर्स काढता येतो. आपण हा आपल्यासाठी घेतलाय Q1. यू कॅन ऑल्सो फाइंड force acting on charge Q2 by remaining charges, force acting on Q3 by remaining charges. किंवा यातले अजून काही कटच केले, आपण फक्त 3च घेतले, Q1, Q2 आणि Q3. तुम्हाला एक्झाममध्ये जे ॲप्लिकेशन असतं त्यामध्ये फार तर 3 किंवा 4 चार्जेस असतात. हे 3 चार्जेस आहेत. मग काय Q2, Q3 हे दोन्ही Q1 वर फोर्स एक्झर्ट करतील. पहिला असेल F1, दुसरा असेल F2. या दोन्हीचं रिझल्टंट तुम्हाला काढता येईल युझिंग पॅरलोग्राम लॉ. और यू कॅन फाइंड रिझल्टंट फोर्स ऑन Q3, रिझल्टंट फोर्स ऑन Q2. कुठल्याही चार्जवरचं रिझल्टंट फोर्स तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येईल. ठीक आहे, तुझा डाऊट सॉल्व्ह झाला का? अजून वेगळा डाऊट आहे तुझा काही? हो सर, झाला सर. ओके, very good. Now write down statement of superposition principle. Statement of superposition principle. लिहा स्टेटमेंट त्याचा. इफ द नंबर ऑफ चार्जेस if number of charges are interacting if number of charges are interacting in a given space
the number of charges are interacting in a given space. The force experienced by a particular charge force experienced by a particular charge or by a given charge, force experienced by a particular charge is the vector sum This vector sum is vector addition, vector subtraction according to vector algebra. ठीक है. Force experienced by a particular charge, it is the vector sum of the forces. It is the vector sum of the forces exerted by vector sum of the forces exerted by the remaining charges on a given charge. Remaining charges on a given charge. तर सगळ्यात महत्त्वाचा वर्ड काय? वेक्टर सम. वेक्टर सम. हे सगळे वेक्टर्स आपण काय करतोय? ऍड करतोय. ठीक आहे, युजिंग वेक्टर अल्जेब्रा. आता तुम्ही म्हणाल सर पहिला चार्ज Q1 पॉझिटिव्ह घेतला तुम्ही, हा पण पॉझिटिव्ह घेतला, हा पण पॉझिटिव्ह घेतला, जर याच्यातला हा एखादा चार्ज निगेटिव्ह असेल तर काय करायचं? आपण चांगलं समजण्यासाठी सगळेच पॉझिटिव्ह घेतला. हा Q2 पॉझिटिव्ह आहे, Q3 निगेटिव्ह आहे, Q4 पॉझिटिव्ह आहे, Q5 निगेटिव्ह आहे, तर काय होईल? तर असं होईल की Q1 आणि Q2 मध्ये फोर्स ऑफ रिपल्शन आहे, ह्या फोर्सची डायरेक्शन आहे F12 बार. बट सिन्स Q3 इज निगेटिव्ह, Q1 is positive, therefore there is force of attraction. There is force of attraction between the two charges. Therefore, direction of this force will get changed. Direction of F13 will get changed. Magnitude will remain same, no doubt. Magnitude is still 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q3 divided by R square. Okay. Magnitude will remain same. What changes is direction. Now this force will be in this direction. F13 bar. It is directed towards charge. ये force of attraction बनेगा ना, force of attraction. Then if this charge is negative, then it will be force F15 bar. Yes, in this direction. अब इसमें क्या हो जाएगा? दो वेक्टर में जो एंगल है वो चेंज होगा, एंड एज द एंगल चेंजेस द वेक्टर सम विल गो ऑन चेंजिंग. रिजल्टेंट चेंज हो जाएगा. इफ डायरेक्शन चेंजेस, रिजल्टेंट चेंजेस. Some are force of repulsion, some are force of attraction, and if we add all the forces, then it is a vector sum of all the forces. That is the resultant force. So this is about the superposition principle. ठीक है. तो चैप्टर में जो पहला सेक्शन है, पहला पार्ट है कूलोम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इस पॉइंट तक थ्योरी हमने कंप्लीट कर दिया है. उस पे जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन हम लेने वाले. आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1 एंड 2 कवर्ड. बाकी जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है उस पर हम कैसे कर रहे हैं? अभी थ्योरी का जो सेक्शन है वो पढ़ा दिया, तो उस पर जो न्यूमेरिकल्स है वो डायरेक्टली लेंगे. त्याच्यावरचे न्यूमेरिकल्स लगेच घेणार. म्हणजे काय होतं की तुम्हाला परत एकदा, कारण सगळं चॅप्टर झाला तोपर्यंत बरेच फॉर्म्युले झालेले असतात, तुमच्या डोक्यात त्यातले काही फॉर्म्युले राहतात, नाही राहत. मग त्याकरता लगेचच्या लगेच ॲप्लिकेशन येईल तर म्हणजे तुम्हाला घरी थोडी प्रॅक्टिस करता येतं. ठीक आहे, त्याच्यावरची. मग आपला प्रॉब्लेम नंबर 3 काढा, नोट्समधला शेवटचा प्रॉब्लेम नंबर 3. दोन कंप्लीट झालेत ना आपले? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now get problem number 3. हे लिहून झालंय सर्वांचं? Sir. Good. Can you read once the statement? Yes. Who will read that statement once again?
कौन फिर से पढ़ेगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस फॉर Coulomb's force. We'll read that statement. Yes. If the number of charges are interacting in a given space, the force experienced by a particular charge is the vector sum of the force exerted by remaining charge on the given charge. Okay. So that resultant force, it is a vector sum of all the forces. Force experienced by a particular charge, it is the vector sum of the forces exerted by remaining charges on a given charge. Now go to problem number 3. प्रॉब्लम नंबर 3 में देखो, विल रीड द प्रॉब्लम. सर मैं आए. यस, जोर से पढ़ो. Two small sphere 18 centimeter apart have equal negative charges and repel each other with the force of 6 into 10 raised to minus 8 Newton. Find the total charge on both the sphere. Okay, you have to find out total charge on both the spheres. Try to understand the question. This is application of Coulomb's law. Application of Coulomb's law. What are given? There are two small spheres 18 centimeter apart have equal negative charges. Equal negative charge. This first charge negative, second charge is also negative, but their magnitude are same. First charge is minus q, second charge is also minus q. Both charges negative, equal negative charges. Repel each other with a force of 6 10 raised to minus 8 Newton. Force between two charges is given. 6 into 10 raised to minus 8 Newton. Say this is first charge minus q. Second charge, this is charge q1 minus q. Second charge q2, it is also minus q. Now these two spheres will repel each other. There is force of repulsion. Now these two forces are action reaction forces. Magnitude is same. If this force is F1, if this force is F2, F1 bar, F2 bar magnitude is same. F1 same as F2 is equal to F. ये फोर्स हमें दिया है 6 10 raised to minus 8 Newton. Then magnitude of both the charges are same. They are separated by distance of how much is given? It's 18 centimeter, no? किती आहे तेवढाच आहे ना 18 centimeter. Convert in meter. Distance between the two charges centimeter to meter 18 10 raised to minus 2 meter. You have to find out resultant charge, total charge. के लास्ट में क्या पूछा है? फाइंड द टोटल चार्ज ऑन बोथ द स्फीयर्स. टोटल चार्ज ऑन बोथ द स्फीयर माने टू फाइंड टोटल चार्ज. टोटल चार्ज that is total charge q, it is equal to q1 plus q2. ये हमें कैलकुलेट करना. तर काय करायला लागेल इथे? कुलोम्सला अप्लाय करायला लागेल. q1 q2, there are two unknowns, but we know that q1 is same as q2. It is equal to q. It is equal to q. मग आपल्याला फॉर्म्युला अप्लाय केल्यानंतर एकच अननोन मिळेल, काय? q. आणि दोन्ही मिळून किती असतील? q plus q, that is 2q. Total charge will be negative. Total charge will be negative. Now formula for this. Formula according to Coulomb's law, force, it is equal to formula 1 upon 4 pi epsilon 0
magnitude of first charge, second charge divided by distance square. हा आपला बेसिक फॉर्म्युला 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 divided by r square. It is not mentioned where the charges are kept, so you assume that they are kept in vacuum. They are kept in vacuum. नसेल दिलेलं याचा अर्थ ते vacuum मध्ये आहेत. If they are in vacuum, then 1/4 pi epsilon 0 is 9 into 10 raised to 9. Is numerical value of 1/4 pi epsilon 0, 9 10 raised to 9. Force between the two charges 6 10 raised to minus 8. 6 10 raised to minus 8 into q1 q2. Now q1 it is same as q2. q1 it is same as q2 is equal to q. Magnitude of both the charges same. So this will become q into q. We are writing in magnitude form. Actually the charges are negative charges. Actually तो minus q पुन्हा q square बनेल तो. मायनस क्यू घेतला काय प्लस क्यू घेतला काय. आपण इथे डायरेक्शन बद्दल बोलत नाही, आपण फक्त मॅग्निट्यूड लिहितोय. q1 q2 divided by r square. Distance 18 10 raised to minus 2 square. Now simplify this. 6 10 raised to minus 8 into 18 10 raised to minus 2 square. On this side 18 10 raised to minus 2 bracket square divided by 9 10 raised to 9 goes to denominator side, 9 into 10 raised to 9, it is equal to, on right hand side q into q, q into q is q square. Now simplify this. q square is equal to, आता तुम्हाला फिजिक्सचे जे सगळे ह्याच्या पुढचे प्रॉब्लेम्स आहेत फर्स्टमध्ये असतील किंवा सेकंडमधले, ह्याच्यामध्ये तुम्हाला 10च्या पॉवरचं कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. 10च्या पॉवरचा तुम्ही 10 रेस टू n आणि शेजारी 10 रेस टू m लिहिला तर कसं लिहिता, 10 रेस टू m प्लस n. बेस सेम, पॉवर्स आर ॲडेड, आयदर पॉझिटिव्ह पॉवर ऑर निगेटिव्ह पॉवर. 6 10 रेस टू मायनस 8 इंटू 18 स्क्वेअर. 18 स्क्वेअर किती आहे सर? 18 स्क्वेअर किती आहे? 324. 324. 10 रेस टू, हे पाठ पाहिजेत कमीत कमी 20 पर्यंत तरी स्क्वेअर क्यूब पाठ करून ठेवा कॅल्क्युलेशनसाठी. 10 रेस टू मायनस 2 स्क्वेअर, मायनस 2 स्क्वेअर मायनस 4 डिवायडेड बाय 9 इंटू 10 रेस टू 9 इज इक्वल टू 324 6 बाय 9, 3 दुने 6 3 3 9. ठीक आहे. 3 9 27, 3 1 3 भाग 3 8 24. ओके 108 8 24 बरोबर आहे. 108 इंटू 2, दिस इज 216. 216. ओके 216 इंटू, आता 10चा पॉवर कॅल्क्युलेट करायचा बघा. न्यूमरेटर 10 रेस टू मायनस 8 मायनस 4 मायनस 12 येतो लक्षात. मायनस 8 मायनस 4 मायनस 12 मायनस 12, 9 10 रेस टू 9 ये ऊपर जाएगा, ये बनेगा माइनस 9. माइनस 12 माइनस 9, ये कितना बने? 10 रेस टू माइनस 21. यस 10 रेस टू माइनस 21. 216 इंटू 10 रेस टू माइनस 21 क्यू स्क्वायर. इसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं. 10 रेस टू माइनस 21 का निकाल सकते क्या स्क्वायर रूट? अरे 10 रेस टू माइनस 21 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हम? नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 10 रेस टू माइनस 21 बाई 2. ये जो पावर है ना, ये इवन चाहिए, तभी तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. 2 से डिवाइड कर, स्क्वायर रूट माने क्या? पावर 1 बाई 2. सो दिस नंबर शुड बी इवन. इट शुड बी आइदर माइनस 20 और माइनस 22. जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं, माइनस 20 और माइनस 22. राइट, माइनस 20. सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक आहे, इकडचा पार्ट दिसतो सगळ्यांना दिसतोय. क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, I will write this number 21.6. रीअरेंज. ये 10 रेस टू माइनस 21 हम स्प्लिट करते हैं 10 रेस टू माइनस 20 इंटू 10 रेस टू माइनस 1.
इसमें जो 10⁻⁻1 बचेगा उसको इससे मल्टीप्लाई करो, 216 इंटू 10⁻⁻1, ये क्या बनेगा 21.6, और शिफ्ट डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट टू लेफ्ट, ये पावर क्या बनेगा -20 बनेगा, ठीक है। 21.6 इंटू 10⁻⁻20। अब ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट हम इजीली निकाल सकते हैं। कैन यू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ 21.6? स्क्वायर रूट लॉग टेबल में देखो मिलेगा क्या स्क्वायर रूट ऑफ 21.6? नहीं तो आपको 1/2 लॉग एंटी लॉग करना पड़ेगा। 21.6 का स्क्वायर रूट टेबल में दिया है, आप सबके पास लॉग टेबल है? 4 point ओके, स्क्वायर रूट टेबल में है डायरेक्टली। ओके, हाउ मच? 4.64 टेकिंग स्क्वायर रूट q is equal to अंडर रूट ऑफ 21.6 इंटू 10⁻⁻20 का स्क्वायर रूट 10⁻⁻10, q स्क्वायर का स्क्वायर रूट q 21.6 स्क्वायर रूट इंटू 10⁻⁻20 का स्क्वायर रूट 10⁻⁻10। अब 21.6 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 4 पॉइंट, ये आपके लॉग टेबल में डायरेक्टली है, वहां टेबल दिया है, 4.648 ये तो 4 पॉइंट 4 पॉइंट, यस वेरी गुड, 648 डायरेक्टली दिला तिथे 4.648 4.648 टेबल मध्ये आहे डायरेक्ट तिथे 4.648 स्क्वायर रूट ऑफ 21.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम. This is charge q, magnitude of charge q 4.648. What is our question? To find the total charge. Total charge is q1 plus q2. That is q plus q. Now total charge. Total charge q is equal to q1 plus q2, that is q plus q, 2q, 2 into what is q 4.648 into 10⁻⁻10, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 दूने 16, 4 दूने 8 9, 7 दूने 12, 4 दूने 8 9, ओके, इट्स 9.296 बघा एवढा येतो into 10⁻⁻10 coulomb. This is the total charge. 9.296. Check the answer. Check the calculation. ज्यांचं लिहून घ्यायचं राहिले त्यांनी लिहून घ्या पटकन फास्ट. टेक्स्टबुक मधले सॉल्व अनसॉल्व मॅक्सिमम सगळे प्रॉब्लेम आपण इथे घेतोय, तुमच्या नोट्समध्ये ते आहेत. त्याच्यासारखेच बाकीचे प्रॉब्लेम तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी दिलेले असतील, ते सॉल्व केल्यानंतर मग MCQ तुम्हाला सॉल्व करता येतील. कालची जी टेस्ट होती त्याच्यामध्ये CT लेवलपेक्षा थोड्या हार्ड लेवलचे क्वेश्चन होते. ॲक्च्युली जनरली ते क्वेश्चन नीट लेवलचे होते, जे काही क्वेश्चन जे आहेत ते सॉल्व करण्यासाठी थोडा जास्त वेळ लागत होता. तरी पण तुमची एक प्रॅक्टिस तर झाली, तो पेपर तर आपण संपूर्ण सॉल्व करणार, तुम्हाला एक आयडिया तर आली.
लिहायचं असेल त्यांनी लिहून घ्या, बाकीच्यांनी मला डाऊट असेल डाऊट विचारून घ्या. बरं, उद्या येताना मात्र उद्या प्रत्येकाकडे क्वेश्चन पेपर पाहिजे. तो टेस्टचा पेपर आपल्याला सॉल्व करून घ्यायचा. तुम्हाला PDF नाहीच टाकलेली का? बरं ठीक आहे, बघतो PDF आहे का, मी टाकून देतो तुम्हाला संध्याकाळपर्यंत. परत एकदा वाटलं तर त्यातले क्वेश्चन सॉल्व करून बघा जे तुमचे चुकलेले असतील. कारण नुसता पेपर होणं महत्त्वाचं नाही आहे, त्या पेपरमध्ये काय चुकलंय, चुकलेले क्वेश्चन आपले करेक्ट झाले पाहिजेत तर त्याचा यूज आहे. नाहीतर मग नुसते असे पेपर किती पण घेता येते. ते परत एकदा घरी सॉल्व करायचे आहेत जे ते तुमचे क्वेश्चन रॉंग झालेले आहेत. झालेले हो. So today we'll stop here. Next part will continue tomorrow, the same time.